السلام علیکم، دس از عماد ضیاء اور آج ہم اسٹوڈنٹ آف قرآن کی بابرکت محفل کے اندر موجود تھے اور آج ایک انتہائی سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے جس کو سن کے دماغ کی جو آپ کہتے ہیں رگیں جو ہیں پھٹ گئیں اور میں موجود ہوں ورلڈ وائڈ فائنینس اینڈ لیگل کنسلٹنٹ محمد آفتاب احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Let me introduce myself. My name is محمد آفتاب احمد. میرے پروفیشنس میں بہت سارے پروفیشنس ہیں جس میں مینلی آئی ایم اے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ آئی ایم اے لا گریجویٹ. اور میرا فائنینس اور لیگل کے پروفیشن سے بالخصوص گزشتہ 50 سال سے بہت گہرا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لا میں اتنی ایکسپرٹیز عطا فرمائی ہے کہ پاکستان کا کوئی وکیل میرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جبکہ مین پروفیشن میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ہے. اس کے علاوہ میں پریچر آف اسلام بھی ہوں اور جو ہے یہ اور میری عمر 70 سال ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 1000 سال مانگے ہوئے ہیں کہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا کریں کہ میرے جو مقاصد ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے دین اسلام کو پوری دنیا میں نفاذ چاہتا ہوں. تو اس پہ جو عمل ہے وہ جب تک میرا مشن مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے. میں اس وقت 1954 از مائی ایئر آف برتھ. 15 مئی 1954. تو اس لحاظ سے جو ہے 71 ایئرس بنتے ہیں میرے ایج. تو دس از مائی انٹروڈکشن اینڈ آئی ایم پریکٹسنگ ایز اے ورلڈ وائڈ فائنینس اینڈ لیگل کنسلٹنٹ. سر اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ قانون کا اطلاق حقائق پہ ہوتا ہے. قانون کا اطلاق حقائق پہ ہوتا ہے. قانون کا اطلاق حقائق پہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ ہے. کیونکہ مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اطیعوا الرسول میں آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی چاہی کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے آپ تک اللہ کا یہ پیغام مقدس کتاب قرآن پاک پہنچا دیا ہے. تو سب نے گواہی دی ہاں میں. تو رسول اللہ نے ان تمام پہ فرض عائد کیا کہ اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ اس اللہ کے پیغام مقدس کتاب قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیے. ہم لوگوں کی ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے اور ان کے دوسرے رفقا کار ساتھیوں نے مل کے پاکستان کا قیام اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم کر دیا. ایک الگ ملک جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. تو اس وقت ایک صاحب نے محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا کہ آپ نے ملک تو بنا دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن اس کا آئین کا ہے. ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے اور پھر اس آئین کے ماتحت جو ہے اس ملک کے جو ہیں وہ ذیلی قوانین جو جیسے پاکستان میں ذیلی قوانین 50,000 سے زائد ہیں جسے بیرک یا گیرک بھی بعض لوگ کہتے ہیں لیکن مین جو ہے وہ آئین ہے. تو سوال جب کیا گیا محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ آپ کہ اس ملک کا آئین کا ہے. سر میں ایک عرض کروں اس کو بریک کر دیں بہتر آئے گا نا. لوگوں نے سوال کیا محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام تو کر دیا لیکن اس کا آئین کا ہے. جبکہ ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اور ہر ملک کا آئین ہوتا ہے اور پھر اس کے ماتحت قوانین ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں آئین کے پاکستان میں 50,000 سے زائد ذیلی قوانین ہیں. تو اس ملک کا آئین تو آپ نے بنایا ہی نہیں. تو اس کی وضاحت ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ بیرسٹر قانون دان ہیں اتنے بڑے بیرسٹر قانون دان لیکن آئین نہیں بنایا اس ملک کا. تو محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا کہ ہمیں
आइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइन तो हमें, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें अल्लाह ताला ने मुकद्दस किताब कुरान पाक अता किया हुआ है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया के तमाम ममालिक पे नाफिज़ुल अमल है, ख़ास करके पाकिस्तान में। लेकिन कुफ़ार और मुनाफिकीन इस तगदो में थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को, जो जिसका बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया था कि यही पाकिस्तान का आइन है, इसको हटाया जाए। तो उन्होंने एक मजमूम साजिश के तहत 1973 में एक आइन बनाया गया जो नाफिजुल अमल किया गया, और उसको इस्लामी लिबादा पहना दिया कि उसके प्रीफेस दिबाचे में बात लिख दी गई कि पाकिस्तान में जितने भी झेली कवानीन होंगे आइन के तहत, अगर वो आइन, इस आइन से अगर वो कुरान और सुन्ना के मुतज़ाद होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कुरान और सुन्ना से, तो वो बातिल करार पाएंगे और उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात जो है 73 के आइन में नहीं दर्ज की गई, बल्कि 73 के आइन के प्रीफेस दिबाचे में लिखा गया। और ये एक तरह का पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ मजमूम फ्रॉड, टोपी पहनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया, क्या मौलवियों को भी बेवकूफ़ बनाया गया कि भाई हमने ये बात लिख दी है 73 के आइन में कि अगर पाकिस्तान के जो भी कवानीन, झेली कवानीन होंगे आइन के तहत, वो अगर कुरान और सुन्ने के मुनाफी होंगे तो वो बातिल करार पाएंगे। और तमाम लोग खुश हो गए कि भाई ये इस्लामी आइन आ गया, जबकि ये इस्लामी आइन नहीं है। वजह यह है कि जब लोग जो है परेशान होकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ये कानून, वो कानून, मैं मिसाल एक देता हूँ 1961 के फैमिली लॉ की, जिसमें लिखा गया कि आप दूसरी शादी कर नहीं सकते जब तक पहली बीवी से इजाज़त ना लें। अगर बगैर इजाज़त आप शादी करेंगे तो आपको 6 माह की जेल होगी और 50,000 जुर्माना होगा। अब एक इरशाद बीवी साहिबा हैं जिन्होंने BA इमरानियात सोशोलॉजी की किताब में लिखा है कि अब लोग ये करते हैं कि इजाज़त, पहली बीवी अगर इजाज़त नहीं देती दूसरी शादी की तो वो पहली बीवी को डाइवोर्स कर देते हैं कि भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसी तरह से सूद है और कई इस तरह के कवानीन हैं जो कि नाफिजुल अमल है, लेकिन वो बातिल करार नहीं पाते। लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी शरीयत अदालत टकरे मार मार के थक गए, चीखे मार मार के थक गए। लेकिन वो जो काफिराना कवानीन है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बातिल करार देने से इनकार कर दिया। जब वकला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने कहा कि आप इन गैर इस्लामी कवानीन को सेट असाइड क्यों नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये तो दिखाओ कि आइन में, 73 के आइन में कहाँ लिखा है कि जो कानून जो है कुरान सुन्ना के मुनाफी होगा उसको वो मुनाफी करार पाएगा, कहाँ लिखा है। तो वकला ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि ये देखें 73 का आइन के दिबाचे प्रीफेस में लिखा है। तो जजेस ने कहा दिबाचे प्रीफेस में लिखा है ना, आइन में तो नहीं लिखा। क्योंकि आइन में नहीं लिखा लिहाजा इसकी आइनी हैसियत नहीं है। तो अब इससे ये बात पता चली कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि भाई ये इस्लामी आइन है, इस्लामी कानून है, और उस वादे की नफ़ी हो रही है, जो उस हुक्म की नफ़ी हो रही है जो रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबे में कहा था कि अब आप लोगों तक पहुंचाएं। तो अब हम इस्लाम को अगर नाफिज करना चाह रहे हैं तो जो आइन है, अल्लाह का जो दिया हुआ आइन है, उसको नाफिज करने के लिए लाजमी है कि जो कानूनदान हैं, लॉ मेकर्स हैं, सिटिंग इन असेंबली एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान, दे शुड amend 1973 constitution by placing this declaration in 1973 constitution preface, उसको आर्टिकल 1A की जगह दें और आर्टिकल 1A की जगह देकर उसमें आर्टिकल 1 में लिखें कि पाकिस्तान में राय जितने भी कोई भी कवानीन जो कि कुरान और सुन्ना के मुनाफी है वो बातिल करार पाएगा। तभी तो ये अल्लाह का बना हुआ आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो पाकिस्तान में नाफिज होगा, जभी तो इस्लाम नाफिज होगा। तो लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में आइनी दरख्वास्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ और मेरे साथ एक कसीर तादाद लोगों की है जो
मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, लाइलम हैं, और सियासी पार्टियों के जो लीडरान हैं, जो कायद बनते हैं, रहबर बनते हैं, वो तो इस पिटीशन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्या वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज नहीं चाहते? क्या वो पाकिस्तान में नहीं चाहते कि जो अल्लाह का बना हुआ कानून है कुरान, वो नाफिज़ अमल हो? अगर इसको नाफिज करना चाह रहे हैं तो 73 के आइन में के आर्टिकल 1 में ये बात लिखें, जो बात 73 के प्रीफेस दिवाचे में लिखी है कि जो भी पाकिस्तान के ज़ैली कवानीन कुरान सुन्ना के मुनाफी हैं वो बातिल हैं। तो इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त होगी पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से कि अगर मेरी बात समझ आती है, मुत्तफिक हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ कि बराए करम इस आइनी दरख्वास्त का जो है वो मेरे साथ शरीक हो, और जितने सियासी पार्टियां हैं जिसके जो हेड हैं, जो ये कहते हैं कि वो हमारे लीडर हैं, तो अगर आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे रहबर हैं, तो बराए करम ये कानून पास करवाइए असेंबली और सेनेट में। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, वरना अल्लाह ताला का कहर अजाब हम पे नाजिल रहेगा। हम लोगों की जो ये अजाब हैं महंगाई का, गुर्बत का, उससे फिर ज़ैली कई माशी बुराइयां पैदा हो रही हैं, ज़िनाकारियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। ये तमाम इसीलिए हो रहा है कि महंगाई, बेरोज़गारी जैसे जुराइम जो हैं, और वो इसलिए हो रही है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून पर अमल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला का हुक्म है मुकद्दस किताब कुरान पाक में जगह जगह कि आप इंसाफ से काम लीजिए, आप अदल इंसाफ कीजिए। ये ऑर्डर जो अल्लाह ताला का है अदल इंसाफ का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी, हम सब ने भी इंसाफ करना है। इंसाफ करना है इस मुकद्दस किताब कुरान पाक के जो हक बनता है कि इसको इस मुल्क में नाफिज अमल किया जाए। अगर किसी किस्म की वजाहत दरकार हो तो आप जो है मोहतरम इनसे रब्ता कीजिएगा, ये मुझसे रब्ता करके आपको मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरह सर ने बातचीत की, और ये सुन के जो है हमारे सबों के साथ तो धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि दिमाग से बाहर है। और मेरी खास तौर पर मजहबी जमातों से मुझे बड़ी उम्मीद है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से और जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब से, कि वो इंशाल्लाह इस पे आवाज़ उठाएं। जमीयत उलमाए इस्लाम जो है ये लोग सही है, और ये लोग जो आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मजहबी जमातें जब आगे उठेंगी, क्योंकि मजहबी जमात तो उनका तो काम ही है सुन्नत, तो इस पे अमल करने के लिए उस पे खामोशी तो जुर्माना गफलत होगी। और मुझे अपनी मजहबी जमातों पे पूरा भरोसा है, और मुझे पता है कि उस काम में हमारे साथ शामिल होंगे। दिस जमात जिया, जाते वक्त बात जरूर कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मेरी बात इजाफी करनी है, मैंने वादा किया कि एक हफ्ते में दरख्वास्त डल जाएगी। ये मेरी कोशिश होगी, मेरा वादा नहीं है कि एक हफ्ते में डलेगी। मेरी बेहतरीन कोशिश होगी कि अल्लाह ताला मुझे वो असबाब मुहैया कर दें कि मैं एक हफ्ते में अपने इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा दूं। आमीन आमीन।